اور پھر میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو درمیان دیتا ہوں اور کلیسیا فادر کو سب تمام کلیسیا کو اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو اور تمام سننے والے کانوں کو فادر کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہلیلویا۔ ہمارا سب کو بہت سے برکت دے۔ میرے عزیزوں، مثال میں لکھے گئے لفظ مثال 6 بار پر اس کی 20 آیت، مثال 6 بار پر اس کی 20 آیت کلام مقدس میں لکھے گئے لفظ کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو پہچانا۔ مثال 6 بار پر اس کی 20 آیت میں لکھے گئے لفظ آئے سب تشریف رکھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کے دعا کرنے والا ہے۔ قرآن آپ کو برکت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہے فادر ڈے اور میں اس کلیسیا کو سلام پیش کرتا ہوں اور بہت اچھی کلیسیا، بڑی تابعدار کلیسیا، اور میں ایک روحانی بات ہونے کی حیثیت سے میں اس کلیسیا کی تعریف کرتا ہوں، اور یہ ہمیشہ بڑی وفادار، بڑی تابعدار اور دل اور جان سے یہ پیار کرنے والی کلیسیا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میں چاہوں گا کہ جسٹر بی پاسٹر ایلڈر اور اپنا ٹھیکر یہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اس کلیسیا کے لیے، وفاداری کے لیے اور بار انتظامیہ کے لیے تالیاں بجائیں۔ میں نے پاسٹر صاحب عامر کو کہا ہے آپ کے لیے تالیاں بجائیں، آپ کے لیے خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ بہت اچھے ہیں، لیکن دیکھیں باپ کے بیٹے ایک بھی ہو تب بھی اتنا پیار ہوتا ہے، 4 بھی ہو تب بھی اتنا پیار ہوتا ہے، جتنے بھی ہوں وہ سب کے ساتھ ایک جیسا پیار کرتا ہے۔ آج زیادہ تر جو کہ میری ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ کچھ بیٹے ایسا کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، میرے ساتھ اتنا نہیں کرتے۔ آپ باپ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ باپ برابر کا پیار کرتا ہے۔ ایک بیٹا ہوتا ہے اور اکلوتا ہی ہوتا ہے، ایک ہی بیٹا ہوتا ہے ان کا، تو اس کا نام حیا ہوتا ہے۔ ایک کلیسیا بڑے دھیان سے خدا کی آواز کو سنیں، ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اور اکلوتا ہوتا ہے، اور اس کا نام جو ہوتا ہے یہ حیا رکھ دیتے ہیں۔ جب نام رکھا جاتا ہے وہ آسا اور وقت کے ساتھ وہ جوان ہوتا ہے، تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہو نا تو ہم اپنے بیٹے کے لیے کوئی رشتے کی تلاش کریں، تو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈیں، وہ ایسی لڑکی ڈھونڈیں اور تاکہ ہم اس کی اپنے جیتے جی خوشی دیکھیں۔ لیکن بیٹے کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہاللیلویا، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جب بھی میرے لیے، میری بیوی اور میرا ہم سفر اور میرا ہم خیال جب آپ نے ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے، تو میرا نام ہے حیا اور میری بیوی کا نام ہونا چاہیے شرم۔ ہاللیلویا۔ میرا نام ہے حیا اور میری بیوی کا نام شرم ہونا چاہیے۔ وہ تلاش میں بزرگ ہوتا ہے، سفید بال ہوتے ہیں، سفید داڑھی ہوتی ہے، مونچھیں سفید ہوتی ہیں، وہ کبھی اس علاقہ میں جاتا ہے تلاش کے لیے کہ یار ادھر کوئی ایسی لڑکی ہو۔ نہیں بابا جی ادھر تو کوئی ایسی لڑکی نام کی نہیں رہتی،
پھر وہ کسی اور علاقے میں چلا جاتا، ادھر بھی نہیں ملتی، کسی اور علاقے میں، خیر وہ اسٹرگل کر کے بزرگ آدمی ہوتا تو برا بھی محسوس نہیں کرتا۔ بچوں یہ سننے والی بات ہے، وہ برا بھی محسوس نہیں کرتے۔ آخر کار وہ ایک علاقہ میں، ایک گاؤں میں جاتا ہے، ادھر بچے وہ باہر پل گولیاں کھیلتے ہوتے ہیں، اور ان کو پوچھتا بیٹا آپ ادھر یار کھیلتے ہیں اور میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ ادھر کوئی لڑکی شرم نام کی رہتی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بابا جی آپ ایسا کریں ادھر ادھر جائیں، اس طریقے سے گھومیں گے، بالکل فرنٹ میں جو دروازہ آئے گا سامنے اور لکڑ کا دروازہ ہوگا، اس گھر کے اندر وہ بیٹی رہتی ہے۔ وہ بابا جی جاتے جاتے اس نے جا کر اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر دروازہ ان کا کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بیٹی نکلتی ہے، اور اس بیٹی کی جو بڑی ہوتی ہے اس نے پوچھا کہ بیٹا میں ادھر آیا ہوں، انہوں نے پوچھا بزرگ آدمی ہو سکتا، گرمی کے دن ہے، پانی کی یا کھانے کی پیاس، پہلے لوگ مہمان نواز ہوتے تھے، یہ میری ایک بات یاد رکھے، پہلے لوگ مہمان نواز ہوتے تھے۔ جب مہمان گھر میں آتا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ سفید اپنا وہ کھیس لیتے تھے، سرانا رکھ کر اس کو بڑے طریقے سے، اس وقت مہمان نواز لوگ ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ ادھر کیا انہوں نے بٹھایا کہ بابا جی آپ بیٹھے، اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، اس نے کہا کہ آپ بیٹھے ہیں، ہم آپ کا سوال بھی سنتے ہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے بٹھایا، بٹھا کر اس کو پانی پلایا، پانی شانی پلا کر اس نے کھانا پوچھا، انہوں نے کہا نہیں کھانا میں نے نہیں کھانا، پانی میں نے پی لیا ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ تو میرا ایک سوال ہے، انہوں نے کہا جی کرے سوال۔ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اور پچھلی عمر کے خدا نے جا کر ہمیں مجھے دیا ہے، تو میں نے اس کا نام حیا رکھا تھا، اور اب وہ بڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میرے لیے جو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق بیٹی سلیکٹ کرنی ہے اور اس کا نام شرم ہونا چاہیے، تو مجھے پتا چلا میں آپ کے گھر کا سوالی ہوں، میں سوال کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کرنا ہی ہے۔ تو کوئی بات نہیں بابا جی، پہلے لوگ بزرگوں کی عزت کرتے تھے، پہلے لوگ اگر کوئی بچہ باہر کوئی ایسی کام کرتا تھا، محلے کا بزرگ اس کی پٹائی بھی کر دیتا تھا، تو کوئی ماں باپ اعتراض کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کہتا تھا بچے کو جھوٹا کر دیتے تھے کہ بھی اگر اس نے مارا ہے تو کسی غلطی سے ہی مارا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ 22-24 سال کا بچہ چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے، بزرگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ کلیسیا فرق ہے کہ یا نہیں؟ اور اس وقت میں تو وائگن پر جو سوار ہو جاتے تھے، جو بچے بیٹھے تھے، بزرگ جب سوار ہوتے تھے اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ بابا جی ادھر بیٹھے، میں کھڑا ہو کر سفر کر لیتا ہوں۔ فرق آتا یا نہیں آیا؟ ہلیلویا، کلیسیا میرے ساتھ رہیے، فرق آیا یا نہیں آیا؟ اج کہیں بابے نو کیا کہنے سی کہ ہے سفر پاویں بیچارا اونج نیواں ہو کے سفر کر بیچارے نے چک پہ جائے یا پٹھے کا کچھ ہو جائے، وہ کوئی گل نہیں، لیکن بڑوں کی عزت کرنی سیکھے۔ ہلیلویا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ پکا ہو گیا۔ حیا دار لڑکا ہے، حیا نام کا لڑکا ہے اور شرم نام کی لڑکی ہے۔ رشتہ پکا ہو گیا، برات گئی۔ جب برات گئی اور شادی کر کے گھر لے کر آ گئے، اور مکلا اپنا سب ادھر سے رخصتی کی، گھر لے کر آئے گئے، اور جو شرم نام کی لڑکی گھر بیٹھی، تھوڑی دیر بیٹھی اور اٹھ کے وہ چلتی خون کے پاس جاتی ہے تو کھوج چھال مار دیتی ہے۔ کھوج، میرے ساتھ رہیے کلیسیا، کھوج
ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਯਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਬ ਹਯਾਮ ਨਾਮ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਯਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਯਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਹਯਾ ਵੀ। ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, बुलंद आवाज कलीसिया, शर्म ही मर गई, शर्म ही मर गई, रह गई जे हेरा फेरी। हालेलुया, रह गई जे हेरा फेरी। आज सीखें वो शर्म भी मर जाती तो हया भी मर जाती है। ना बड़ों की इज्जत होती, ना बाप की इज्जत होती है, ना दादा की उम्र की इज्जत होती है, ना किसी बड़े की इज्जत करती है। और जब आप इज्जत नहीं करते तो कभी आपकी फैमिली, आपका खानदान ब्लेस नहीं होगा। हालेलुया। फिर शर्म ते हया मरनी चाहिए या जिंदा रहनी चाहिए? कलीसिया मेरे साथ रहिए। शर्म हया जिंदा रहनी चाहिए या मर जानी चाहिए? फिर आज से बड़ों की इज्जत करनी सीखें, क्योंकि दाऊद कहता है कि ना हो घोड़ियां खच्चरा मगर तू ते कुछ भी नहीं है समझो ना। और कुछ लोगों की ऐसी जिंदगी होती है और वो कहता है कि मैं किसी के सामने मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ और मैं किसी के मैं ठीक हूँ। जो अपने आप को ठीक कहता है सबसे बड़ा वो गलत होता है। ये याद रखें। किसी की बात सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं कि ये क्या कह रहा है, ये क्यों कह रहा है। खुद जज्बात छाना करना। आपको एक नबी, क्योंकि आप लोग हैं, हमारा बाप जिंदा होगा। हालेलुया। मैं सुबह पढ़ रहा था, मैं उस साले की आप हवाला भी निकाल लें, गिनती भाई बाप और सॉरी प्रदेश भाई बाप, आप हवाला निकाल के उसकी स्टडी करें। मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी करते करते मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। काश के बाप तू जिंदा होता, आज तुम मुझसे ये चीज़ मांगता कि मुझे भूख लगी है, भूख सताती है और मैं कोई लजीजा चीज़ खाना चाहता हूँ, मेरे लिए आप कुछ करें। मैं सॉरी ये अपना साहिबा, गिनती साहिबा, सॉरी अपना ये पैदाइश साहिबा, ये पैदाइश साहिबा का और भाई का मैं हवाला आपको बताऊंगा बाद में। काश कि मेरा बाप जिंदा होता, मेरे से ये चीज़ मांगता और मैं स्ट्रगल करता, मैं भाग कर मैं उसके लिए चीज़ लेकर आता और मेरे घर में वो पकती है। और जो बुजुर्ग जो होते थे ये खाना कम खाते थे लेकिन इनका दिल ज़्यादा करते थे, और ये खाना कम खाते थे लेकिन ये मांगते ज़्यादा होते थे, जो कि अक्सर ये मसाल भी पाई जाती। जो बड़े बुज़ुर्ग हो जाते थे इनकी आदतें बच्चों वाली बन जाती हैं, जो ये कहते कि फटाफट हो जाए। और देखे कि जब उसने ये मांगा और मैंने उस हवाला को पढ़ा, मैं कि काश के बाप तो आज ज़िंदा होता तो शायद मैं तेरी ऐसे खिदमत करता, मैं घर में पका कर तेरे आगे भी न रखता, मैं अपने हाथों से तोड़ के अपने बाप को खुद खिलाता। ना जाने के खुदा मेरा मुझसे इससे भी ज़्यादा काम लेना शुरू कर देता, ना जाने के मेरा खुदा मुझे इससे भी ज़्यादा सरफराजी देता, ना जाने के मेरा बाप मुझे दुआ देता
तो मेरा खुदा दुनिया के कोने कोने तक मुझे खिदमत के लिए लेकर जाता। ना जाने मैं अपने बाप को अपने हाथ से खिलाता और मेरा खुदा मुझे और दुनिया की तमाम चीजों से नवाजता। ना जाने मैं अपने हाथों से अपने बाप को तोड़ के खिलाता और मेरा बाप ये दुआ देता कि तो दुनिया के कोने कोने तक हर चीज सरफराजी पाएगा और तू तेरी औलाद मैं तुझे बरकत देता हूँ। तो अपने दुश्मनों के बरकत का भी मालिक होगा, बल्कि तेरे दुश्मन तेरे पर गालिब नहीं आएंगे, बल्कि तू उनके फाटकों का भी मालिक बन जाए। हालेलुया। ये फादर डे मनाना अच्छी बात है, लेकिन इज्जत करना उससे अच्छी बात है। ये उससे ज़्यादा ज़रूरी। मैं जो फादर साहबान वाला बैठी हैं, मैं उसके बाद मैसेज के बाद पहले इजहार भी उनको मौका दूंगा कि वो करें, और जो भी उनके दिल के अंदर है, जो भी बोझ है और नौजवान नस्ल के लिए, बेटियों बेटों के लिए रखना चाहते हैं वो रखें। बेटियों के लिए ये है एक तजरादी सुरमा था, वो छंग के लिए चाहता, और जब वो छंग के लिए चाहता और एक अहद कर लेता कि खुदा ये मैं तेरे साथ अहद करता हूँ, जब मैं छंग जीत कर, जब मैं फतह पाकर, जब मैं अपने मुल्क को अपने दुश्मनों के फाटकों पर गालिब आकर, मैं उनके सिपा सलारों पर गालिब आकर, जब मैं फातेहमंद होकर वापस लौटूंगा, और जाते ही जब घर के अंदर मैं दाखिल होगा और घर के अंदर दाखिल होते ही जो मेरे सामने चिंगी नजर कर दूंगा, जो मेरे सामने आएगी मैं तेरी नजर तुझ पर कुर्बान कर दूंगा। और जब उसकी बेटी उसके सामने आती है और उसकी बेटी के साथ बाप बहुत प्यार करता है, जब वो सामने आती है तो वो नाचती है, झूमती है, गाती है कि इसलिए कि मेरा बाप फातेहमंद है। हालेलुया। कलीसिया जे तो तालियां मार रही तो खुल के मारते हैं, तेरिया ठंडियां तालियां नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बिजली का बिल आता है, कलीसिया मेरे साथ रही, बिजली का बिल आता है, अजकल तो वैसे ही बड़े आ रहे हैं। हालेलुया। गैस का बिल आता है, प्राप्ति का टैक्स आता है, क्यों जी आता या नहीं आता है। हालेलुया। तो बिजली अपना तालियां का हालेलुया। और जब बिल नहीं आता तो फिर वो ऐसी प्यार चार भी घर के अंदर होना चाहिए, इसलिए कि बिल पे करना नहीं पड़ता। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। देखिए जब वो नाचती झूमती सामने आती कि मेरा बाप फतह हासिल करके आया है, मुल्क पर फतह पाकर आया है, उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। और जब वो वापस आता है तो बेटी नाचती नाचती झूमती उसके सामने आती हो, बाप परेशान हो जाता है और बाप कहता है कि बेटी आज तू नहीं नाच रही, आज तू नहीं नाच रही, क्योंकि तेरी मौत नाच रही है। मैं तो अपने खुदा के आगे ये ऐद कर चुका था, मैंने तो अपने खुदा के आगे ऐद किया था कि जो मेरे सामने और जो मुझे मेरे घर के जाते ही पहले मेरे सामने आएगी, मुझको तेरी नजर कर दूंगा। और मेरी बेटी तू मेरे सामने आ गई है तो मैंने तुझे खुदा की नजर कर देना है, मैंने तुझे खुदा के नाम से कुर्बान कर देना है। तो बेटी ने दरीक किया, बेटी ने इनकार किया, बेटी ने जवाब दिया, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हो तूने अपने फादर के साथ अहद किया है, मैं अपने फादर की वफादार हूँ। तू अपने फादर के नाम से फतह पाकर आया है, मैं अपने फादर के नाम से फतह बंद होगी। वहाँ जहाँ खुदा के लोग होंगे वहाँ मैं भी हूँ। हालेलुया। क्यों भी धीओ बेटियों बाप को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो वो जी होंगी कहती चल जा तू ही वादा किया ना, तू ही तो आया नालायद किया, मैं किया है। ये कैसा ऐद किया है,
तू अपने बच्चों ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਸਤਾ ਚੰਗਾ ਪਾਦਰੀ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ लेकिन ये याद रखें मर जाते हैं मगर मिटते नहीं मर जाते हैं मगर मिटते नहीं लाखों जहान आबाद कर देते हैं वो फरिश्तों से भी अफजल हैं वो जन्नत के वारिस हैं आज भी मौत आ जाए तो कोई बात नहीं है जीना मेरा मसीह है तो मर जाना हालेलुया मर जाना इसलिए कि मैं मौत के दरवाज़ा में से गुजर कर जब अपने खाल के हकीकी के पास जा मिलूंगा ये तो खाक है आज भी जाना है तो कल भी जाना है हालेलुया तो जो खुदा के नाम से कुर्बान हो जाए इससे बढ़कर कौन सी खुशी की बात होती है। देखें जब ऐसा होता है तो बेटी कुर्बान होने के लिए तैयार होती है और देखें कि उम्र गुजर गई है खुदा ने एक ही बेटा दिया है। ये पैदाइश 22 की मैं बात कर रहा हूं एक ही बेटा दिया है और वो भी खुदा ने ये वास्या कह दिया कि जो तेरा कलौता है उसको मेरे नाम से तू कुर्बान कर दे। तो अब्राहम ने कोई इनकार किया है कलीसिया अब्राहम ने कोई इनकार किया है क्यों भाई सब अब्राहम ने कोई इनकार किया कि नहीं मैं तो नहीं जो देना। देखो जी अगर अब्राहम ने इनकार नहीं किया तो अम्मा सैरा नूं रफड़ पा लेना चाहिए सी इन्नी देर बाद खुदा ने दिता तो ये भी खुदा की नस्ल है इन्नी देर बाद खुदा ने साढ़े घर के अंदर ये रौनक ये खुशियाँ दिखाई हैं वो भी हम खुदा को देते हैं। ओ उसने कहा नहीं मैं एक दिन में तुम्हारा वफादार नहीं हूँ मैं एक दिन आपका वफादार नहीं हूँ मैं एक दिन के लिए वफादार नहीं हूँ तू जब कर एक कलौटा की कभी आसार भी हुआ तो मैं तेरा वफादार हूँ मैं आसार भी कुर्बान कर देता हूँ। हालेलुया क्योंकि है मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बचाना। देखें जब उसने कहा कोई बात नहीं खुदा तूने मांगा है मैं दे दूंगा और सुबह सवेरे उठते ही वो खदे तैयार करता है और खदों के ऊपर लकड़ियां रखता है और लकड़ियां रखकर जब बेटे को साथ लेता है बेटा भी साथ जाने के लिए तैयार है। बेटा भी जानता है कि ये उस जगह पर जाकर कुर्बानी किसकी देगा। वो हाथ में छुरी भी है और हाथ में आग भी है कुर्बानी के लिए कोई चीज़ नहीं है ये छुपा हुआ भेद है या बाप जानता है या उसका बाप जानता है बेटा नहीं जानता कि उधर जाकर क्या होना है। और जब लकड़ियाँ लेकर जाते हैं उस पहाड़ी के मुकाम पर उस जगह पर पहुंचते हैं तो मेरे अजीज़ों जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखें ना तो रास्ते के अंदर बेटे ने ये सवाल किया कि मुझे भूख लग गई है छोटा बेटा है और ना उसने ये सवाल किया कि मुझे प्यास लग गई है और ना उसने ये सवाल किया कि मैं थक गया हूँ कि मुझे इस जगह पर सांस लेने दे। उसने कोई बात नहीं की उसने कहा कि जिसके लिए हम जा रहे हैं वो हमारी टांगों का जोर है वो हमारे जिस्म की तवानाई है वो हमारी कुव्वत है वो हमारी ताकत है। हम जितना भी चलेंगे उतना वो जोर देगा हम जितना भी चलेंगे वो बरकत देगा हम जितना भी चलेंगे वो प्रयास करेगा जितना भी हम बोझ लेकर चलेंगे हम बोझ को उठाएंगे तो वो हमारी कमर और कंठ को मजबूत करता जाएगा। हालेलुया कलीसिया हालेलुया कलीसिया बोले हालेलुया कलीसिया बोले हालेलुया बुलंद आवाज कलीसिया हालेलुया। देखिए जब वो अकेला ही चल रहा है बोझ गधों के ऊपर है जब उस मकाम पर पहुंचते हैं उस जगह पर पहुंचते हैं उस जगह पर पहुंचते हैं
ऊपर जब पहाड़ी पर छाना है तो गधे तो नहीं जाएंगे, जो आपका बोझ है ये आप ही उठाएंगे। उसने खतों के ऊपर से लकड़ियाँ उठाई और बेटे के पीछे रख दी। बेटे ने ये सवाल, बहरहाल इस चीज़ की तस्दीक करके बेटे ने सवाल नहीं किया कि बाप मेरी कमर पर रख या मेरे सर पर रख, मैं इतना तेरा ताबेदार हूँ। बाप ये बदन जिस्म और मैं दिलो जान से मैं अपने फादर का वफादार हूँ। ये सर पर भी आएगा तो मैं अपने फादर के लिए सारा कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी कमर पर भी रखियाँ जाएंगी तो तब भी मैं वफादार हूँ। बाप तूने बोझना है, बाप तूने बोझ को मेरे ऊपर ला देना है। और जब तूने मेरे ऊपर बोझ रखकर तूने आवाज देनी है, ये तेरा फरमान है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बेशक मुझे आशा से भी चलना पड़े तो मैं आपके बाद मैं अपने फादर का वफादार हूँ। मुझे तेज में चलना पड़े तो मैं अपने बाप का अपना फरमाबरदार हूँ। इसलिए कि बाप तू क्या चाहता है कि मैं जल्दी जाऊँ, कि मैं आशा जाऊँ। बाप तू कैसे कहता है कि अगर थोड़ा टाइम है तो मैं बोझ उठाकर भागने के लिए भी तैयार हूँ। इसलिए कि मेरा बोझ मेरा खुदा उठाने वाला है। बेशक उम्र थोड़ी है। हालेलुया, 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 कलीसिया हालेलुया। बेशक उम्र थोड़ी है, बोझ ज्यादा है। बेशक उम्र कम है, वजन ज्यादा है। बेशक कद छोटा है, सफर लंबा नजर आ रहा है, कोई बात नहीं है। अगर छोटा होकर एक जाति जूलियस को गिरा सकता है, मैं छोटा होकर अपने बाप का अपने फादर का फरमाबरदार होकर ये बोझ उठाकर पहाड़ियों पर, एक पहाड़ी पर नहीं मैं तो बल्कि पहाड़ों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि वो कहता है कि आका मांगे वांगर तेनू सोते कि तेरी जिंदगी लो करता नया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये उधर चादर उतारी और खरबानगा बनानी शुरू कर दी, छोड़ना शुरू कर दी। देखे बाप के हुक्म पर बेटा कुर्बान होने के लिए भी तैयार है। बाप के कहने पर उसने ये नहीं कहा कि बाप आपको पता ही नहीं, आपने इतनी उम्र गुजार दी है खुदा की खिदमत में, आपको पता नहीं है। और जिसको पता ये होगा उसका हुक्म है, या वो जानता है या वो जानता है, बेटा नहीं जानता। और जब उसने ये किया तो कुर्बान पर, हालेलुया, कलीसिया हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। जो बातें कर रही हैं वो भी बोले हालेलुया, जो भाई बातें कर रहे हैं वो भी बोले हालेलुया। देखें, उसने जब लकड़ियां जोड़नी शुरू की तो आखिरकार बेटे ने पूछ लिया कि ये लकड़ियां भी तैयार हैं, हो छुरी भी तैयार है, आग भी तैयार है, ऐन मौका है। तो भर्रा किधर है? कुर्बान होने के लिए भर्रा किधर है जिसकी हमने सौतेली कुर्बानी गुजारनी है? वो किधर है? वो बाप फिर कहता है कि बेटा तो खौफ ना कर, यह हवा यारी खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। हो बेटे को ऐसे कहता है। जब उसके हाथ और पांव बांधने लगा तो किसी पादरी का पुत्र होंगे तो उंजी नस जाना सी, पहाड़ी लाभे इलाके च लभना ही नहीं सी, लभना सी उन्हें कहना लब्बे ने किहड़ा काम शुरू कर देते, उन्हें नस जाना, उन्हें बेचारे ने फांसा देते रहना, फांसा देते रहना। वो बेटा किधर है तू? वो पुत्र किधर चले गए हैं? वो बाप इधर पुकार रहे हैं, वो बाप इधर इंतजार करता पाया। पुत्र ने नहीं सी लभना, लभना सी क्यों जी, लभना सी। ये याद रखे अब्राहम की यह तरबियत थी, वो अपने बाप के पास साथ, वो अपने फादर के साथ वफादार था, उसका बेटा उसके साथ वफादार था। उसने जब हाथ और पांव बांधे, हाथ और पांव बांध कर उम्र देखे
100 साल से भी ज्यादा उम्र है। हाथ और पांव बांध कर जब उसने कुर्बान गाह के ऊपर रखा उसको, तो देखे वो उस बाप का कैसा हौसला था, कैसी वफादारी थी, कैसी ताबेदारी थी। और बेटा और बाप जब छुरी को पकड़ता है और छुरी को पकड़ कर उसके क्या उसके वक्त असरात होंगे, उसके वक्त क्या उसका एक हौसला होगा, क्या उसके ऊपर भीड़ती होगी कि बेटा है मैं इसकी गर्दन पर छुरी चलाने लगा हूँ, बेटा है मैं इसको कुर्बान करने लगा हूँ, बेटा है आइंदा के बाद ये नजर नहीं आएगा, मैं तो इसको खुदा के नाम से कुर्बान कर देने लगा हूँ। मैं इसकी माँ को और इसकी मदर को, इसकी वादा को क्या जवाब दूंगा, मैं तो बेटे को इधर ही कुर्बान कर देने लगा हूँ। मेरी बीवी इसकी मदर क्या पूछेगी, मैं क्या बताऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो इसको इधर ही जो कि ये कुर्बान कर देने लगा हूँ और ये मेरे साथ वापस नहीं जाएगा। और मैं कैसे जाकर और किस तरीके से मैं जाऊंगा। और देखे कि औलाद का दुख किसी से बर्दाश्त नहीं होता, औलाद की परेशानी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। देखे कि ये अपने फादर के साथ कैसा वफादार है, ये अपने फादर के फरमान को कैसे बचा ला रहा है। और भी देखिए कि बेटे के गर्दन पर छुरी चलाने के लिए तैयार है। जब बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने लगा तो उसने कहा कि अब्राहम मैंने तुझे आजमा लिया है, अब्राहम मैंने तुझे देख लिया है, अब्राहम मैंने देख लिया है कि तू अपने फादर का फरमान बचा रहा है और तेरा बेटा तेरा फरमान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बारी परचून की दुकान से सौदा मंगा ली, दूजी बारी पुत्रा ही एडियां मोटियां अखा कढ़ा लग गया। उदों नहीं सी पता, हाले हुणे ही तो मैं गया है, वापसी आउंदे नहीं सी पता। इक्के दफे सारिया चीज़ां याद करें तुम कहते ने कि नहीं, इक्के दफे सारिया चीज़ां याद करके दस्या करो। ओ इसकी वफादारी देखे, इसकी फरमाबरदारी देखे। उसने ये नहीं कहा कि बाप तेरे घर के अंदर इतने मवेशी हैं, इतने पेड़े हैं, इतने बैल हैं, किसी को साथ ले आता, किसी को अपने साथ करता और उसको एक क्या जितनी भी तो कहता था कुर्बान हो जानी थी। उसने कहा नहीं, मेरे फादर का हुक्म है कि अपने इकलौते को कुर्बान। हालेलुया। तो देखिए जब आवाज आई कि अब्राहम मैंने तुझे आजमा लिया, अब्राहम मैंने तुझे आजमा लिया है, हाँ तेरा बेटा बहुत फरमाबरदार निकला है, तेरा बेटा बहुत ताबेदार है, ये अपने फादर का बहुत ताबेदार है। जब उसने ये कहा तो उसने कहा अब्राहम अब तूने बैठे नहीं रहना, अब्राहम तो अपनी जगह पर नहीं रहना। इसी एज के अंदर भी मैंने आजमाइश ली, तू कामल निकला, मैंने तुझे किया और तू कामल निकला। अब्राहम तो उठ और बाहर निकल, आजा मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ। और मेरे पीछे पीछे आते आते तू नीचे नहीं बल्कि आसमान की तरफ ये नगाह कर और आसमान के सितारे गिन सकता है तो गिन ले, अगर नहीं गिन सकता तो ना गिन, लेकिन मैं तुझे बरकत देता हूँ। आसमान के सितारों की मानत तेरी नस्ल के लोग बढ़ेंगे और जमीन के और समंदर के किनारे की रेत की मानत मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते इतना खिला दूंगा कि समय चला पर भी इसकी कोशिश होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। इजहार दी तरह ताबेदार रहना जे कि यहाँ शर्म ही मर गई थे, शर्म ही मर गई थे। क्यों जी शर्म ही मर जानी चाहिए कि यहाँ अब्राहम दे बेटे की तरह ताबेदार होना चाहिए। फादर डे मनाए ना, इस पर अमल करें। वो गीत है तेनू कुखों जमन वाली मां लगदी है मानियों, तेनू कुखों जमन वाली मां लगदी है मानियों।
जिस रुख ने शान दिती उस रुख दी शान लगदी हुण शानियों सुखां दियां छावां वे पुत्रा सुखां दियां छावां तेनू लगन कंडियाले छपे वे क्यों चीज फालतू कहते माँ पे फालतू चीज है क्यों चीज फालतू लगदे तेनू बुढ़ड़े मापे में जो बना बना के घर बुजुर्ग हो जाते हैं काले बालों से सफ़ेद हो जाते हैं कमर टूट जाती है वो फालतू चीज़ बन जाती है जैसे गैलरी में फेंक दें जैसे कोने में फेंक दें अंदर से उनकी चारपाई बाहर आ जाती है उनकी चारपाई बाहर आ जाती है। तो मेरे अजीज़ों आज ऐसा ना करें। अगर देखें वो लजीज़ा खाना उसने दिया बेटे ने खाया और बाप ने खाया आंखें धुंधला गई वो धोखे से बेशक वो बरकत ले गया लेकिन बरकत बाप ने दी थी। बरकत किसने दी थी? बरकत किसने दी थी? तो आज बरकत कौन देता है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बात कीजिए बरकत कौन देता है? बरकत बाप देता है। माँ की दुआएं हमेशा साथ होती हैं माँ की दुआएं रहनुमाई करती हैं माँ जो है माँ की दुआएं हैं ये इंसान को तरक्कियों बुलंदियों पर लेकर जाती है और माँ की दुआ इंसान को दलेर करती है लेकिन बरकत जो होती है ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाप के पास है। हालेलुया। लेकिन एक वक्त है कि वो बेटे की कुर्बानी मांग लेता है और एक वक्त होता है कि फादर कहता है इन मेरे बच्चों ने गलती की है इन मेरे बच्चों ने गुनाह किया है इन मेरे बच्चों की खताई है इन मेरे बच्चों की गलती है और ऐसा करे कि मेरे सारे बच्चों को पीछे उठा दे ये सारे एक साइड पर आ जाए तो मैं अपना सीना तान कर आगे खड़ा हो जाता हूँ। मैं सबके लिए मार खाने के लिए तैयार हूँ मैं सबके लिए कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ मैं सबके लिए पसली पर नेजा खाने के लिए तैयार हूँ मैं सबके लिए काट पर और जो के सलीब पर जान देने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज मेरे लोग जिंदगी पाएं और कष्ट रखें। हालेलुया हालेलुया। तो बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा प्यार करता सीना तान के खुद मार को बर्दाश्त कर लेता है बच्चों को बचा लेता है। हालेलुया। तो बच्चों फिर माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सच्ची गल दसना जिदा नहीं दिल करता ना करें पर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो लानती होएगा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिहड़ा माँ बाप की इज्जत करेगा वो अपने दुश्मनों के फाटकों का भी मालक बन जाएगा। हालेलुया। और तेरे दुश्मनों दी जिहड़े ज़मीनां खुदा वो भी रजिस्ट्रियां तेरे नाल ही कर देगा। जाओ मौजां लवो पै तुसीं अपने माँ बाप के अपने फादर के फरमा बरदार हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला बहुत ज़्यादा बरकत है और अब